एवरीवन। दोस्तों, आज के समय में एवरीवन वांट टू क्रिएट द वेल्थ एंड द इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट द वेल्थ। और इसी को ध्यान में रखते हुए नागपुर ब्रांच के द्वारा इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम कंटिन्यूसली लिए जाते रहे हैं और उसी सीरीज में आज वापस पुनः एक बार हमने इस प्रोग्राम को लिया है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपके डिसीजन सही होना चाहिए। जब आपके अच्छे डिसीजन वेल्थ क्रिएट कराते हैं तो एक गलत डिसीजन वेल्थ को डिस्ट्रॉय भी कर देता है। और आज हमें इस सब चीज पे गाइड करने के लिए हमारे साथ हैं सीए अमित साहू जी सर। तो मैं उनका भी यहाँ वेलकम करता हूँ सर। और मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए हमारे डायनामिक चेयरमैन सीए साकेत बगड़िया सर का वेलकम करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना वेलकम स्पीच दें। ओवर टू यू साकेत सर। Thank you so much, Sanjay sir. A very good afternoon, respected speaker for today, Sri Amit Sahu ji, Secretary of the branch, Sri Sanjay Agrawal ji, and all the respected members. Friends, this is really a privilege for Nagpur branch to welcome on the forum Sri Amit Sahu ji, who is a well-known investor, who's a well-known financial planner, I will say, and he's doing this job since last so many years. It's a privilege for Nagpur branch to host this program under the aegis of Committee on Capital Market and Investor Protection. This is a committee being set up by ICAI in Delhi for the purpose of educating the chartered accountants as well as the members, as well as the common and the general public for having a knack about the investments to be done on that. So we are extremely thankful to the committee for allotting this prestigious event to Nagpur branch, and we are fortunate to have Sri Amit Sahu ji guiding this first session on investor awareness under the committee. Friends, it's always said that as far as the investment portfolio is concerned, I always put it that this is a concept of fire and ice. People may say bull and bear. I always say it is fire and ice. The reason for fire and ice is that a person who is more optimistic is said to be a fire person. A person who is cool and wishes to reap the benefits of the trees planted by him later would be a bear, would be an ice person. So I feel this fire and ice concept is always there, because as an individual, we always wish that we should earn a lot of money in a very small time span. Obviously, everybody wishes on that. But for that, how to invest that and to invest wisely for earning that return is the most important part. If I am able, if it had been a physical meeting, I would have asked a question from all the people as to what is the amount of money which anybody would like to earn or would like to make. Obviously, everybody would like to raise, okay, fine, I want to make 100 crores, I want to make 1000 crores. Somebody may plan to purchase even Antilla from Mukesh Ambani. So I feel the expectations, there is no limit to the expectations. But as far as these investor awareness programs are concerned, the initiative of this committee and the objective of Nagpur branch is to make the common public as well as the members aware about all these things. The topic for today is common mistakes that destroy wealth, invest wisely. I feel that was a very apt topic suggested by the speaker, because yes, I feel there are some things which we often don't wish to, but we tend to make some mistakes. And that is where the entire catch is. Somebody will say that the return on investment on an FDR is so less. इतना कम FDR के interest के अंदर मैं कैसे अपना काम करूंगा? So somebody may say, okay, fine, I wish to go for a mutual fund or a share market, anything like that. And then when they enter into that, they enter at a very high peak, and then suddenly the market crashes. So they say, नहीं ये तो सब गड़बड़ है, यहाँ पर सब गलत है. So it is never on that. I always feel that there are three important factors for anybody to decide an investment. First is your future planning. Second is the security which you are looking for. And the third part is the timing of the investment. Honorable Speaker, sir, would guide the members better on that. But this is what is generally perceived by the people as to what are the factors
before you should think before you go for investing market. I'm extremely delighted that so many of members are coming forward to learn this basics about investing. I wish all of you a very happy learning, so that all of you get benefited by the deliberations of Amit Sahuji. Friends, as far as the future events are concerned, we are going to have day after tomorrow a session on a 4-day session on international taxation. Friends, international taxation is a subject which sometimes we feel that it's not our cup of tea. But I say opportunities will not come by knocking your door. You have to create your own opportunities. If there is a course which is spread out over a period of 4 days, this is a national conference international taxation, wherein you are going to get to know all ins and outs about international taxation. We may restrict ourselves to 15 CA/CB or even to NRI taxation, how to file the return of income of an NRI. But I feel, friends, there is much more to that. With this technological advancements being made, the world has now become a small world. So for anything and everything, if you need to service your Bombay client or a Mumbai client, your Mumbai client or a Delhi client, you really don't need to go to that place. You can do that sitting at your own place. So therefore, for international clients, the opportunity is there. I urge upon all of you, please do register for this 4-day national conference on international taxation. At most appropriate timings, it's in the morning from 8 to 11. So while having your breakfast, you can learn this international taxation and equip yourself. I request all of you to kindly register for these 4-day session as well. It's going to cover 12 hours CPE and the fees is 500 rupees plus GST. So I wish all of you a very happy learning. Thank you so much. Thank you and thank you all. Over to you, Sanjay Bhaiya. Thank you, Chairman sir. Thank you, Chairman sir. And I take the opportunity to introduce our speaker, C. Amit Sahuji sir. C. Amit Sahuji sir is partner in the AV Sahuji and Associates. Sir qualified CA in 2002. Amit sir is also visa qualified. Investment is passion of Amit sir, and since 95, sir guided on investment and created good wealth with ideology of investment with proper asset allocation. Sir has also quality of the sports. Sir is also a good swimmer. Amit sir has won various awards in Ekpathon, combination of running and swimming. And in the swimming and diving championship, sir is also playing badminton, chess and table tennis. Sir, Amit sir also won various debate competition also. So please welcome all-rounder personality, CA Amit Sahuji sir, with a round of applause. वेलकम सर. थैंक यू सर. और सर अब ये मैं प्रोसीडिंग आपको हैंड ओवर करता हूँ फोरम कि कैसे आप लोगों की एसेट क्रिएट कराना है, तो आपके लिए फोरम ओपन है सर. ओवर टू यू सर. थैंक यू. For Amit sir. Thank you Nagpur branch chairman Saket Bagdiya ji. Amit sir, secretary sir. Before Amit sir takes over, friends, I will just share a thing about Amit sir. When I had a word sometime back with Amit sir, he had told me कि मैंने कुछ एक शेयर था जो मैंने आज से 15 साल 20 साल पहले मैंने खरीदा था या 10 साल पहले खरीदा था और अब वो शेयर 25 गुना हो चुका है, 50 गुना हो चुका है. So you know there are so many things which we learn out of this speaker. Thank you Nagpur branch chairman Saket Bagdiya ji. Secretary sir Sanjay Agrawal sir, dignitaries, seniors in the profession and friends, investor friends, good afternoon. With the permission of chairman sir, I'd like to say this will not be a stereotype presentation. थोड़ा मस्ती, थोड़ा fun, अगर वो permission दे तो colorful presentation, some live example with current scenario as well. We'll keep question and answer session at the end of the presentation.
एंड एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि मोस्ट ऑफ द अटेंडीज नोज द बेसिक्स, सो आई विल नॉट गो डीप इन द बेसिक्स, आई विल गो बाय द करंट सिनेरियो. With the permission of chair, I'll start the session. This is investor awareness program. Investment and wealth creation. Investment and wealth creation are topics which are very interesting, but practicing or accumulation of the same is very difficult. I'll dare to compare it with life before marriage, when you are highly excited कि क्या क्या मिलेगा, but once you get married, couple of years later, you come to know that it is delicate task. Art of investing is more demanding than your spouse. It has few do's and many don'ts. ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, और माना तो ठीक, नहीं तो अच्छा फटका बैठता है. Same with investment. So investing is a long journey leading to financial freedom. Your patience will determine your outcome. Patience, low grade, and trust on knowledge-based planning are the key to learn and practice investment. In investment, investment is a very important part of our life. Investment pays you back. यहां पैसा बनता है. Next slide. For wealth creation, it is not necessary to have super intelligence or super asset class. Necessary things are normal intelligence, normal asset class, and few simple criteria. We all know there are some superstar stocks like Cipla, range given over there, like Eicher Motors, like Infosys. These stocks made superb wealth, but I'll say we don't necessarily need superstars. अगर मैं थोड़ा सा बंबईया भाषा में बोलूं, ऐश्वर्या, दीपिका, कटरीना वन पीस है तो क्या हुआ, दुनिया में हसीनाओं की कमी थोड़ी ही है. विल टॉक अबाउट हसीना एंड नॉट सुपरस्टार, क्योंकि चलाना तो काम हसीनाओं से ही पड़ता है. Few words of wisdom on a lighter note. Don't go mad over one asset class in investment. You can flirt with many asset classes and create wealth with safety nets. And few words of wisdom on a serious note. Investment is life and life is investment. In this seminar, ये जो हम लोग presentation अभी दे रहे हैं, what will be the key takeaways? Summary मैं आपको पहले बता देता हूँ, then I'll cover the detailed topics. First is common mistakes. Huge wealth creation का difference create होता है. I'll cover the topic in detail later, but this will be the common topics. Second is wealth creation. Third is wise investment through various asset class investment. Fourth is magic of compounding. Next. Fifth is current scenario, that is boom or bubble. Everyone have this question in their mind. Positives and negatives for the market. एक minute. Yeah, okay. Next. And time to be cautious. And the most important part of our investor awareness program is what should an investor do? That is recognize, prioritize, and mobilize. Last one will be the conclusion. So I'll start with common mistakes that destroy wealth. In a professional's life or a business person's life, it's a very hard-earned money. Long and erratic working hours have negative influence on financial life. One works tirelessly to serve people leads to lack of sufficient time for investment planning. इवन इन्वेस्टमेंट में बहुत से घरों में तो ये चिंता होती है कि लॉस अलग बात है, मगर बीवी डांटेगी. So our experience says over the period of last 20 years, we observed few mistakes that led to wealth destruction. Please note, this is not exhaustive list. There are other avenues as well. मैं खाने तो यूं ही बदनाम है, मैं खाने तो यूं ही बदनाम है, जुआ, FNO के ये काम है. Sharing a few which are most common. First one,
futures and options. Basically, future and options are the hedging tool to protect huge portfolios from extreme fluctuations in the market. But sorrily, we can say that instead used for gambling and results in huge losses. What are future and options? Major types of stock derivatives traded in share market. Contract signed by two parties for trading a stock asset at a predetermined price on a later date. Contracts try to hedge market risk by looking at the price beforehand. Reduce future risk in investment through predetermined prices. We have used the word hedging. What is hedging? Imagine you construct a portfolio by picking each stock very careful after careful analysis. At some point, you realize that the markets may soon enter a turbulent phase, resulting in portfolio losses. To prevent your market positions from losing money, you construct a portfolio hedged by employing futures. यानी ये एक पोर्टफोलियो का लॉस बचाने के लिए बनाए गए इंस्ट्रूमेंट्स है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस FII, HNI, बड़े इंस्टीट्यूशंस इसको प्ले करते हैं, उनके लिए ये बनाया गया हुआ इंस्ट्रूमेंट था. बट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग ये आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया. एवरी अल्टरनेट इन्वेस्टर इज इंडल्ज इन फ्यूचर एंड ट्रेडिंग. शुरुआत तो होती है हर एक की इन्वेस्टर के रूप में. हर कोई यही बोलता है कि मुझे इन्वेस्टर बनना है. इन्वेस्टर से वो धीरे से ट्रेडर पे कन्वर्ट हो जाता है. ट्रेडिंग में उसको थोड़ा बहुत गेन दिखने लग जाता है. पिछले 1.5 साल में तो ऐसे ही हुआ कि गधा घोड़ा सब दौड़े. तो उसको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, सूडो कॉन्फिडेंस, कि मैं सही कर रहा हूं और मेरे को गेन ही गेन मिल रहा है. देन ही कन्वर्ट्स टू फ्यूचर एंड ऑप्शंस, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा बनता भी है. यानी लिवरेज में काम करते तो ऊपर वाले मार्केट में या कभी कभी पैसा बनता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सीरियस वेल्थ डिस्ट्रक्शन होता है. दिस इज वाइडली प्रैक्टिस ऑन लिवरेज. यानी क्या होता है, इसमें ट्रेडिंग की पूरी कॉस्ट भरनी नहीं पड़ती. इसमें मार्जिन सिर्फ भर के हम लोग उसको लिवरेज पोजीशन ले सकते हैं. यानी हमारे पास अगर 100 इन्फोसिस लेने के लिए भी पैसा ना हो, भले ही हम इन्फोसिस का 1000 का एक लॉट लेके रख सकते हैं. Entire cost of trading does not have to be paid upfront. Increases the profit as well as loss margin of an investor substantially. One wrong decision can lead to huge losses. Accurate predictions regarding the price movements required, which is highly impossible. ये short term period के लिए होता है और इसके लिए कुछ अलग ही skill set लगता है, कुछ अलग ही किस्मत लगती है जो बहुत कठिन है. It is very, very difficult to time the market. सेकंड वेल्थ डिस्ट्रक्शन की मेन चीज जो आती है, दैट इज टिप बेस्ड ट्रेडिंग. इन्वेस्टर वेक अप इन द मॉर्निंग, गो टू मनी कंट्रोल, लिसन टू सम हॉट शॉट्स ऑन CNBC TV18, रैंडम टिप्स ऑन सम अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और अ पोटेंशियल मल्टीबैगर रिकमेंडेड बाय योर जिगरी यार. यार दोस्त, मैंने ये शेयर लिया है, तू भी ले ले, ये 5 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, महीने भर में डबल कर देगा. And the investor buys the stock on impulse. At 3 p.m, same hotshot gives negative tips and you don't even have time and courage to reverse the position. While I am talking, मुझे समझ में भी आ रहा है कुछ इन्वेस्टर्स के फेस देख के कि इन्होंने इनके साथ क्या एपिसोड हुआ वो याद आ रहा है इनको. बहुत सारे ऐसे चेहरे याद आ रहे हैं कि जो मनी कंट्रोल में सवेरे कुछ और बताते हैं, दोपहर में कुछ और चीज हम लोगों के साथ शेयर करते हैं. एक्सट्रीम अगेंस्ट. I like to say tips are injurious to wealth. The tip giver should be busy multiplying his own money rather than wasting time to share his tips. But investors don't care. The lesson: don't trust stock tips that promise quick returns. Do your research before investing. कम से कम इतना तो जान ले व्हाट इज दैट बिजनेस, वो बिजनेस और प्रमोटर्स लेजिटिमेट है कि नहीं. famous Nobel Prize winning American economist Paul Samuelson once said, investing should be more like watching paint dry or watching grass grow. If you want excitement, take $800 and go to Las Vegas. It's very, very important thing. I know this is very boring, watching the paint dry or watching the grass grow, but these are the keys in creating wealth. Third,
wealth destruction, real estate investment at wrong time and high valuations, like paying too much for a property whose rental income stream or resale value cannot support the price, relying on the seller's or broker statements regarding value and income, buying a property at in unreachable area where no future development is visible. 15 साल पहले अगर आपको याद होगा, नागपुर में वर्धा रोड पे बहुत भयंकर बूम चला था. ब्रोकर बताते थे, बड़े इन्वेस्टर्स की बात कर रहा मैं, 2 करोड़ रुपए एकड़ ले लो, 3 करोड़ रुपए एकड़ में बिक जाएगा. और प्रॉपर्टीज ऐसे एक दिन में 2 बार, महीने में 4 बार, 8 बार इस तरीके से टर्न होती थी. बट 15 साल बाद हम लोगों ने जैसे प्लॉट भी किसी ने लेके रखा होगा तो थोड़ा बहुत अगर इंक्रीज होगा तो होगा, अदरवाइज एल्स वो इलिक्विड इन्वेस्टमेंट अभी भी वैसा ही पड़ा हुआ. फोर्थ, वेल्थ डिस्ट्रक्शन, टेकिंग लोन फॉर इन्वेस्टमेंट. मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए लोन लेके हम लोग लगाते हैं, या इन्वेस्टर लोन लेके पैसा लगाता है, तो दोनों काम होते हैं. साइकोलॉजी भी प्ले करना लग जाता है कि लोन का इंटरेस्ट भरना है, और इन्वेस्टमेंट में भी अगर लॉस रहा तो जिस वक्त खरीदना चाहिए उस वक्त वो बेच देता है, और जिस वक्त बेचना चाहिए उस वक्त वो खरीदते रहता है. फिफ्थ वन, ट्रेडिंग विथ हाई लिवरेज. आजकल ट्रेडिंग भी हम लोगों को करने मिलती है, कम पैसे देके भी ट्रेडिंग किया जा सकता है. तो दीज आर द वेल्थ डिस्ट्रक्शंस ट्रिक्स. व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? We all are working hard to earn money. If we can't risk our clients' financial, why should we risk our hard-earned money? So I'll say invest wisely for wealth creation. Wealth is like seawater. The more we drink, the thirstier we become. Author building wealth is a marathon. It is not a sprint. Discipline is the key ingredient. I know ये सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बोरिंग है, मगर इसी बोरिंग से पैसा बनता है. हम लोग जितने भी बड़े बड़े, यानी इवन अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूं, एसेट क्लासेस तो 6-7 एसेट क्लासेस है. शेयर मार्केट की भी बात करूं कि इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, आइशर मोटर्स, सिप्ला, एशियन पेंट, बहुत पैसा बनाया इन्होंने, मगर इनके लाइफ में भी काफी उतार चढ़ाव आए. ये पैसा बनाते वक्त बहुत सारे ऐसे वक्त आए कि जब ये स्टॉक्स भी नीचे आए थे, तो इनको इंपल्स पे खरीद के बेच देना, दिस इज नॉट वेल्थ क्रिएशन. आपको अच्छी कंपनी आइडेंटिफाई करके उसमें बैठना पड़ता है. इट्स मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट. इट्स आर्ट, नॉट रॉकेट साइंस. वेल्थ क्रिएशन इज आर्ट. यू हैव टू फॉलो मोर डोंट्स देन डूज. बिना किसी एक्टिविटी के शांत बैठना पड़ता है. दैट इज वेरी टफ. जब पैसा जेब में हो तो वो उछलता है, कहीं ना कहीं लगाओ ऐसा बोलता है, बट यू नीड टू बी वेरी पेशेंस. तो पेशेंस, लो ग्रेड एंड ट्रस्ट ऑन नॉलेज बेस्ड प्लानिंग, दीज आर द वेल्थ क्रिएशन टिप्स. Why do we invest? For capital growth. At the same time, you want safety of capital and regular income. There are many avenues where you invest depending on your need and risk-taking abilities. There are various types of assets. I'll go from illiquid assets to liquid assets like real estate, luxury, commodities, bonds, stocks, and cash. Some assets are liquid and some are less liquid. Where should you invest? In illiquid and non-revenue generating assets or in revenue generating and commercial assets? अगर ऐसे किसी फैमिली में आप हो जहां ये बोला जाता हो हिंदी मूवी के डायलॉग जैसा कि जहां तक नजर जाती है वहां तक अपनी जायदाद है, तो भाई आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. आप जो चाहे, जो मर्जी है वो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. आप जंगल में घर खरीदो, सेकंड होम खरीदो, फार्म खरीदो, फार्म हाउस खरीदो, डजंट मैटर. बट अगर आप जीरो, या हमारे कुछ दोस्त बोलते हैं डबल जीरो से ऊपर उठे हुए लोग हैं, तो आपको फर्क पड़ता है कि आप किस असेट क्लास में इन्वेस्ट कर. इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज जैसे हम लोगों ने डिस्कस किए, रियल एस्टेट, गोल्ड, इंश्योरेंस, बॉन्ड्स, एफडीज, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, कैश एंड सेविंग्स अकाउंट.
First, we'll go through investment. Investing in real estate at good valuations and in an area with potential growth makes sense. Proper valuations में हम लोग इन्वेस्ट करें और पोटेंशियली ग्रोथ एरियाज में हम लोग इन्वेस्ट करें तो इट मेक्स सेंस इन इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट. Here you have to invest lump sum amount to acquire good property. Real estate investment is highly illiquid, but it's a red statement. For selling the real estate, it takes roughly 6 months for the deal to materialize and get the money. एक साथ बहुत बड़ा पैसा लगाना पड़ता है. अगर अपने पास पैसा अवेलेबल है, एक साथ बहुत बड़ा पैसा और अच्छी जगह पे हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, then we should go for. We should have real estate for our own use. यानी जैसे खुद का घर, खुद की दुकान या खुद का ऑफिस, that is a must. Buying a second home या buying a farm house और आजकल जो ट्रेंड है जंगल में घर और open plots at far and interior locations doesn't make business sense as per investment gurus. Next asset class is gold. Gold is basically historically proven to be a good asset class. आप किसी भी घर में बात करो तो वो गोल्ड के बारे में बहुत अच्छा ही बोलेंगे क्योंकि हिस्टोरिकली उसने प्रूव किया अपने आप को. इट्स अ नेचुरल हेज टू इन्वेस्टमेंट इन रिस्कियर असेट्स. यानी आपके पास अगर इक्विटी है, आपके पास कोई रिस्कियर असेट्स है तो उसके लिए वो नेचुरल हेज है. अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मस्ट इन गोल्ड. ज्वेलरी नहीं बोल रहा मैं, मगर गोल्ड में कुछ परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अ मस्ट. In Indian context, gold has given phenomenal return due to dollar appreciation compared to rupee. Going forward, it may reverse. Dollar appreciation के कारण बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिखे, डॉलर टर्मिनोलॉजी में इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिखे और गोल्ड का भाव डॉलर टर्मिनोलॉजी में तय होता है. Secondly, most important part is there is an import duty of 10% on gold due to smuggling or due to other hazards. अगर ये इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने टेक ऑफ कर ली तो गोल्ड प्राइसेस विल कम डाउन बाय 10%. दैट इज अ रिस्क इन गोल्ड. बट डाउन द लाइन 1 year और 2 years जो सिनारियो दिख रहा है जिसमें इंटरेस्ट रेट कम है, लिक्विडिटी हाई है, ऐसे वक्त जनरली गोल्ड की प्राइसेस स्ट्रांग रहती. थर्ड वन इज इंश्योरेंस. इंश्योरेंस में मेडिक्लेम इज अ मस्ट. इट इज अ मस्ट. टेक्स केयर ऑफ योर हॉस्पिटल बिल्स. हम लोग कोरोना में भी देखा हम लोगों ने कि मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए, दिमाग पे लोड नहीं रहता. सेकंड इंपॉर्टेंट इज टर्म इंश्योरेंस. इट इज ऑल्सो अ मस्ट. टेक्स केयर ऑफ एनी अनफॉर्चुनेट इवेंट. वेरी लो प्रीमियम इज देयर फॉर टर्म इंश्योरेंस. प्रीमियम कॉस्ट बहुत कम है एंड यू कैन गेट अ टर्म इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹1 crore फॉर अ नॉमिनल कॉस्ट ऑफ 9850 पर ईयर. एज अज्यूम 30, यानी 30 साल की अगर आपकी उम्र है तो 8-9 हजार या 10,000 रुपए में आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल जाएगा. मगर इससे गलती से कोई गलत इवेंट हो जाता है तो आपकी फैमिली सिक्योर्ड हो जाती है. तो ये 2 टाइप के इंश्योरेंस आर मस्ट. रिमेंबर, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट. हम लोग गलती ये करते हैं कि LIC को भी इन्वेस्टमेंट टूल मान लेते हैं. वी शुड कीप इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस सेपरेट. Mixing of investment and insurance will cost you huge amount in the form of commission, which could be as high as 35%. यानी आप 100 रुपए पे कर रहे हो तो उसमें से सिर्फ 65 रुपए काम पे लग रहा है, तो वो 65 100 कब बनेगा और 100 के बाद रिटर्न कब जनरेट करेगा. सो इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस आर 2 separate things. Then there are FDs. Due to safety and fixed returns, this is the most preferred asset class for common man after gold. कॉमन मैन के लिए गोल्ड के बाद मोस्ट प्रिफर्ड असेट क्लास है. अगर हम लोग एनालिसिस करें इसका तो FD रिटर्न्स आर 4 to 5.5%. इट्स रेंज बिटवीन. कोर इन्फ्लेशन CPI हमारा है 5.5%. CPI इन्फ्लेशन है 7.34%. नेट गेन आफ्टर इन्फ्लेशन इज नेगेटिव. तो सिर्फ कंफर्ट के बेसिस पे FDs में इन्वेस्ट करना नॉट सजेस्टेड. बट अगर इफ वी आर अ सीनियर सिटीजन तो गवर्नमेंट जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम चला रही है, इट गिव्स अ वेरी गुड रिटर्न. 7.4%. 7.4% आर ग्रेट रिटर्न्स और उनको टैक्स का उतना फर्क भी नहीं पड़ता, यानी टैक्सेबल स्लैब में अगर वो नहीं है तो. सेकेंडली समृद्धि, सुकन्या समृद्धि, इट गिव्स आल्सो द सेम रिटर्न्स. these are 2 good investment opportunities. FDs में investor has to pay tax according to his or her tax bracket on interest earned irrespective of inflation. और ये accrued पे देना पड़ता है. FD मैच्योर्ड होगी तब देना, ये नहीं है. Every year we have to pay tax on that.
If the amount has to be withdrawn before maturity, investor has to pay a cost. Before maturity अगर withdraw कर रहे हैं तो we need to pay a cost for that. Inflation adjusted negative returns are there in the FDs, but tax liability we need to take care of. And third is redemption cost. Next investment class is bonds, government securities, debt instruments. Bonds, government securities are not so famous among common investors, but very famous with intelligent investors. Generates regular interest income which can beat inflation. आपको यहाँ पे FD से ज्यादा रिटर्न मिलता है जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है. Other categories where investor can expect higher returns with some credit risk. मगर हम लोगों के पास कुछ ऐसे भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है जैसे जीरो क्रेडिट रिस्क, जिसमें क्रेडिट रिस्क जीरो है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. इस बार से सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिल्ट जिसको बोला जाता है, इसमें गवर्नमेंट ने छोटे इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना भी अलाउ किया हुआ है. वी नीड टू चूज अकॉर्डिंग टू अवर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. जैसे ये आखिरी कॉलम में हमने बोला हुआ है क्रेडिट रिस्क, यहाँ पे रिस्क ज्यादा रहेगी, बट अगर ये जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाते हैं वहां पे क्रेडिट रिस्क जीरो रहेगी. ड्यूरेशन रिस्क रह सकती है बट क्रेडिट रिस्क इज जीरो. These are reasonable safety है इसमें. टैक्स बेनिफिट्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको लग सकता है इसमें. इंडेक्सेशन के बाद आपको टैक्सेशन कम हो सकता है. लिक्विड है, कभी भी आप इसको लिक्विडेट कर सकते हैं. और एफडी से थोड़े रिटर्न्स ज्यादा निकलते हैं, हायर रिटर्न्स देन एफडी. बाद में कैटेगरी आती है स्टॉक्स की. मैक्सिमम रिटर्न जनरेटिंग असेट क्लास जो बोला जाता है 7 फीट टॉल बास्केटबॉल टीम. हाईली लिक्विड विद ग्रेट रिटर्न्स. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन वेल रिसर्च स्टॉक्स, ये रिवॉर्डिंग है. अगर आप रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दिस इज रिवॉर्डिंग. बट इसमें रेड लाइन है, डे ट्रेडिंग, टिप बेस्ड ट्रेडिंग, एफ&ओ ट्रेडिंग कैन रिजल्ट इन ह्यूज लॉसेस. Few multi-baggers of past period are Infosys, Asian Paints, Cipla, etc. Investor has to keep himself up to date with the current market conditions, and it's a huge task to identify good stocks from thousands of listed stocks. इक्विटी के बारे में फिर से मैं वही एक लाइन बोलूंगा कि अगर इसमें जो डोंट्स हैं वो अगर हमने माने तो ठीक है, नहीं तो अच्छा फटका लगता है. Then asset class is a mutual fund. Pool of investors, they pool their money, give it to fund manager. Fund manager invest with securities. Security generates good returns, and these are again passed on to investors. Low cost investments hai. These are flexible. Invest lump sum amount or invest small amounts at regular intervals. यानी अगर हम लोग रियल एस्टेट से कंपेयर करें तो यहाँ पे आप छोटी छोटी अमाउंट से 500 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए महीने से भी हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी. और आजकल खास तौर पे एसआईपी में कुछ स्मार्ट एसआईपीज भी आई है. जैसे मेरी बहुत से इन्वेस्टर्स के साथ बात होती है, उनको ये चीज पता नहीं रहती. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एसआईपी क्यों मेरी एक ही तारीख को जानी चाहिए, एक सिंगल डेट मैंने दे दी, उसी में मेरा क्यों जाना चाहिए, या मार्केट ऊपर रहा तो मेरी इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है, या मेरे को एनएवी कम रहे तब ज्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. तो देयर आर ऑप्शंस ऑफ स्मार्ट एसआईपी जिसमें आप बोल सकते हो कि ये मेरा सेंसेक्स का टारगेट फिक्स हो गया, सेंसेक्स इससे कम है तो मेरी एसआईपी ज्यादा जानी चाहिए, मेरा सेंसेक्स अगर ऊपर है तो मेरा पैसा कम जाना चाहिए. दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर. इट्स ट्रांसपेरेंट. परचेस अमाउंट डेबिटेड फ्रॉम एंड रिडम्पशन अमाउंट क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट डायरेक्टली. किसी तीसरे के अकाउंट से आपके अकाउंट में इन्वेस्ट नहीं हो सकता और आपका पैसा किसी तीसरे के अकाउंट में जा नहीं सकता. इट्स हाईली लिक्विड. रिडीम एट शॉर्ट नोटिस, आप शॉर्ट नोटिस में कर सकते हो. डेट फंड में T+1 यानी ट्रांजैक्शन प्लस 1 डे में पैसा आ जाता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और इक्विटी फंड्स में 3 दिन में पैसा आता है. बाय द फार म्यूचुअल फंड्स आर द बेस्ट एसेट क्लास. व्हाई? जैसे हम लोग अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, समझ लीजिए हम लोगों ने एफडी किया. एफडी बैंक क्या करता है उस पैसे का? बैंक गिव्स लोन टू इंडस्ट्रीज एंड गेट्स द इंटरेस्ट. आखिर गया वो इंडस्ट्रीज के पास ही. एलआईसी क्या करती है हमारे पैसे का? एलआईसी इन्वेस्ट योर मनी इन इक्विटी एंड डेट मार्केट. तो आखिर पैसा वहीं जा रहा है. बैंक, एलआईसी हो, इन्वेस्ट मनी इन द मार्केट. थर्ड पार्टीज के थ्रू अपने प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन वो एज अ कमीशन रख लेते हैं. तो कैन वी स्किप दिस थर्ड पार्टीज? हम लोग स्किप कर सकते हैं क्या ये थर्ड पार्टीज को? तो देयर आर वेरियस एवेन्यूज. डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर देयर.
which gives good asset allocation. And mutual fund managers with their dedicated research team have a deep insight into stocks and securities. Invest for long term and relax. यानी जो भी आपको बाद में करना हो, enjoy your life, retirement life, pension के हिसाब से ले लो, do whatever you like, you can relax. एक सवाल हमेशा आता है, why mutual funds and why not direct stock market? Percentage of stocks in overall portfolio that matters. कितने पोर्टफोलियो कितने स्टॉक्स का हम लोग स्टडी कर सकते हैं? We need to have maximum allocation to the best performing sectors. सेक्टर्स भी बदलते रहते हैं, इवन उसमें से जो लीडर्स हैं वो भी थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं. एट टाइम्स वी नीड टू बुक प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस. कभी कभी गलत चॉइसेस भी हो जाता है, तो हम लोगों को वो बुक प्रॉफिट्स और लॉसेस करना पड़ता है एंड एंटर अगेन टू एंजॉय द फुल राइड. इट ऑल डिपेंड्स ऑन मार्केट कंडीशन. It is relatively tough for individual investor to identify and act upon. समझ में भी आ गया तो भी वो एक्ट करने में देर लगा देता है, जिसके कारण आइदर प्रॉफिट कम हो जाता है या इन्वेस्टमेंट करने का समय निकल जाता है. म्यूचुअल फंड मैनेजर्स टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स विद अ डेडिकेटेड टीम फॉर मार्केट रिसर्च एनालिसिस. इसमें एक रेड लाइन चाहिए. इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड भी एक असेट क्लास है. म्यूचुअल फंड्स में मगर एक चीज होती है कि अगर आप रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको समझता है मार्केट, तो फिर आपके रिटर्न्स इससे ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि आप समझ रखते हो उस स्टॉक्स की. म्यूचुअल फंड में उनको बहुत सारे स्टॉक्स लेके चलने पड़ते हैं. उनको निफ्टी से बहुत ज्यादा ओवरवेट या अंडरवेट नहीं किया जा सकता. दिस वाज द रेड लाइन इन म्यूचुअल फंड. बेसिकली असेट अलोकेशन या सेक्टर अलोकेशन एक बड़ा रोल प्ले करता है, plays an important role while constructing the portfolio. Recent COVID pandemic had changed the sector allocation in Nifty. IT, banking, pharma where the growth sectors boom में चल रहे थे. After US elections, Biden आने के बाद the perception had changed. Value stocks outperform कर रहे हैं growth stocks को. म्यूचुअल फंड में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो यू विल नॉट मिस आउट ऑन द सेक्टर अपॉर्चुनिटीज, ऐसा बोला जाता है. वी कैन नॉट गारंटी, बट दिस इज सेड. डिसिप्लिन इज द वे ऑफ लाइफ. वेदर इट इज योर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. म्यूचुअल फंड इज द डिसिप्लिन वे ऑफ इन्वेस्टमेंट विच विल हेल्प इन जनरेटिंग गुड रिटर्न्स. नेक्स्ट, हिस्ट्री शोज दैट यू डोंट नो व्हाट द फ्यूचर ब्रिंग्स. द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर is not which stock you buy or which piece of real estate you own. Asset allocation is the key to successful investing. अब हम लोगों का पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट होना चाहिए? इन्वेस्टर अवेयरनेस है तो पोर्टफोलियो कंपोजिशन कैसे होना चाहिए? एक सरी का पोर्टफोलियो सबका नहीं हो सकता. पोर्टफोलियो डिपेंड करता है आपका एज कितना है, आपका प्रोफेशन क्या है, बिजनेस क्या है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो, रिस्क रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन आपका क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कंफर्ट क्या है. अगर आपका कंफर्ट एफडी में बनता है तो एफडी आर द बेस्ट एसेट क्लास फॉर यू. अगर आपका कंफर्ट रियल एस्टेट में बनता है तो रियल एस्टेट इज अ वेरी कंफर्टेबल क्लास फॉर यू. आपका कंफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कंफर्ट के बाद कंफर्ट अगर रहे आपके इन्वेस्टमेंट में तो यू स्टे इन्वेस्टेड एंड वेयर एवर यू स्टे इन्वेस्टेड यू गेन. अगर आपका कंफर्ट नहीं है तो आप एक एसेट क्लास में जाओगे और कंफर्ट नहीं है तो 2-4 दिन में, 6 महीने में, साल भर में आप बाहर निकल जाओगे, तब पोजीशन कैसी क्या है आपके हाथ में नहीं रहती. तो दैट इज व्हाई कंफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. asset allocation very important. There should be balance of fixed income, equity, gold, real estate in your portfolio. जैसे हम लोगों ने रियल एस्टेट में बात की है कि आपका खुद का घर, खुद का ऑफिस, खुद का दुकान, these are very important. रेंटल अगर अच्छा मिल रहा है तो रेंटल अच्छा मिलने वाले रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट भी सजेस्टेड है. फिक्स्ड इनकम यानी कुछ पैसा आपका एफडीज बोल लो, डेट्स बोल लो, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बोल लो, इसमें रहना चाहिए. ये रिस्क कम करने के लिए है. यानी आपका अगर कुछ पैसा इक्विटी में है तो कुछ पैसा आपका डेट में भी रहना चाहिए. इन केस मार्केट में कुछ अनसर्टेनिटी आती है, जैसे कोविड आता है, मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर क्रैश आया मार्केट में तो आपको ये फील होना चाहिए कि डिस्काउंट सेल लगा है, मैं तो माल खरीदूंगा. और अगर मार्केट ऊपर गया है, हाई वैल्यूएशंस पे गया है, तो आपको हमेशा ये लगना चाहिए कि मेरे पास माल पड़ा है, मैं बेच सकता हूं, मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूं.
तो यू शुड बी स्टे इन्वेस्टेड इन प्रॉपर असेट अलोकेशन. गोल्ड भी हम लोगों ने यहाँ दिया हुआ है, जैसे पहले भी बोला था, गोल्ड असेट अलोकेशन में रहना ही चाहिए. Selecting proper asset classes with safety and good returns is a must for wealth creation. It is just like selecting a batting lineup to score and defend 200 plus score in T20. शाहरुख खान ने अपने एक लेटर में कोलकाता नाइट राइडर्स को लिखा हुआ था ये. A winning team is all about having the right mix of players, just like having a diverse mix of asset classes in your portfolio. यानी आपने अगर सिर्फ बैट्समैन ही भर दिए जो डिफेंड नहीं कर सकते स्कोर को, उसको भी मतलब नहीं है. या सिर्फ बॉलर्स भर दिए, जैसे पिछले T20 में हुआ हमारे साथ कि 6 बॉलर्स लेके हम लोग खेले और बैट्समैन स्कोर ही नहीं कर सके. तो दैट शुड नॉट बी द थिंग. देयर शुड बी अ प्रॉपर मिक्स ऑफ असेट क्लासेस. कुछ लोग बोलते हैं क्यों क्रिकेट का ही एग्जांपल बार बार, तो हॉकी टीम का एग्जांपल लेते हैं. इन अ हॉकी टीम देयर शुड बी 3 to 4 फॉरवर्ड प्लेयर्स, 1 सेंटर फॉरवर्ड स्पेशलिस्ट, 1 पेनल्टी शूटआउट स्पेशलिस्ट, 3 फुल बैक, 1 गोलकीपर एंड 2 डिफेंडर्स. इट मेक्स अ प्रॉपर हॉकी टीम. अगर ये नहीं है, अच्छा गोल की नहीं है तो आप गोल बहुत खाओगे, डिफेंडर्स नहीं है तो गोल बहुत खाओगे. अगर अच्छे आपके पास सेंटर फॉरवर्ड प्लेयर्स नहीं है या आपके पास फॉरवर्ड प्लेयर्स अच्छे नहीं है तो आप गोल नहीं कर पाओगे. इस एग्जांपल से जैसे हम लोगों को समझ में आता है कि असेट अलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. पोर्टफोलियो असेट अलोकेशन, इक्विटी, डेट, गोल्ड एंड रियल एस्टेट. इक्विटी चाहिए, असेट क्लास विच जनरेट्स ग्रोथ, जिसमें अच्छे रिटर्न्स निकलते हैं. डेट, डिफेंसिव असेट्स फॉर बैकअप, कि अगर कुछ गलत हो जाता है तो हमारे पास बैकअप हमेशा पड़ा रहेगा, पीस ऑफ माइंड रहेगा. गोल्ड, नेचुरल हेज है, रिस्कियर असेट्स हमारे पास है तो गोल्ड इज अ नेचुरल हेज. और रियल एस्टेट, सम पार्ट जो हमारे खुद के यूज के लिए हम लोग कर सकते हैं या गुड रेंटल यील्ड जहां पे मिल सकती है. अब पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे बनता है? जैसे हम लोगों ने डिफेंसिव असेट क्लास देखा, डेट या एफडीज या बॉन्ड्स, जिसमें 6 to 8% रिटर्न्स हम लोगों ने एक्सपेक्ट करना चाहिए. गवर्नमेंट जीसेक यील्ड 10 ईयर जीसेक यील्ड अभी मेरे ख्याल से 6.18 के करीब है. एग्रेसिव असेट क्लास नहीं, पहले मैं बैलेंस असेट क्लास लेता हूं जिसमें हाइब्रिड बोला जा सकता है, जिसमें डेट भी रहे, इक्विटी भी रहे या आर्बिट्राज भी रहे, जिसमें 10 से 12% के रिटर्न्स जनरेट होने चाहिए. और एग्रेसिव असेट्स जिसमें 12 से 15% के रिटर्न्स जनरेट होने चाहिए. इसमें आपका रियल एस्टेट भी आ सकता है, इक्विटी भी आ सकता है, जहां आपको ऐसा लगे कि आपको ये 15% के रिटर्न देने वाली असेट क्लासेस है. 12 to 15% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ इज अ ग्रेट वैल्यू फॉर योर पोर्टफोलियो. जैसे हम लोगों ने ऊपर में बात किए थे कि सुपरस्टार्स नॉट नेसेसरी वही चाहिए करके हसीना भी काफी अच्छा पोर्टफोलियो बना के दे सकती है. इट्स अ ग्रेट वैल्यू 12 to 15%. We should set realistic return expectations. Don't take undue risk to chase unreal returns. बहुत सी बार इन्वेस्टर ये गलती करते हैं, टिप्स के बेसिस पे बोल लो या किसी ऐसे चीज के बेसिस पे बोल लो कि वो स्टॉक की ताकत ही नहीं है. 2 रुपए का, 3 रुपए का, 4 रुपए का स्टॉक, ऐसे टिप्स काफी चलते हैं जिसमें बोला जाता है कि ये 15 रुपए 20 रुपए हो जाएगा. बोलने में बहुत आसान लगता है, मगर वो 2 रुपए से 15 रुपए यानी बहुत परसेंटेज प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गया. तो अनरियल रिटर्न्स के पीछे हम लोग जाते हैं. रिमेंबर, रिटर्न्स कम विथ रिस्क. जितने ज्यादा रिटर्न्स, रिस्क उतनी ही ज्यादा रहती है जनरली. इन इन्वेस्टिंग देयर आर टाइम्स टू बी केयरफुल, बी कंटेंट एंड एम नॉट टू लूज आवर विकेट. जान है तो जहान है, विकेट ही चली गई, पूरा पैसा ही खत्म हो गया तो क्या करेंगे? देयर वुड बी अदर टाइम्स व्हेन वी एंड अप अर्निंग एक्सेस रिटर्न्स एंड अनएक्सपेक्टेड बोनस, जैसे ये पिछले 1.5 साल में हुआ. अगर हम लोगों प्रॉपरली इन्वेस्टेड है, कोविड टाइम्स में हम लोगों ने अच्छा कॉल लिया, प्रॉपरली हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, तो ऐसा बम्पर ईयर निकल जाता है और ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको हर 10 साल में मिलेगी ना. टिकट आपको ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नॉट एग्जैक्टली सेम 40% डाउन वाला ऐसा नहीं मिलेगा, बट ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें आपके एक्सेस रिटर्न्स जनरेट हो जाएंगे. One size doesn't fit all. There are different type of investors with different risk reward expectations. Some investors want to play on front foot. ऋषभ पंत है. Some are hard hitters, जैसे रोहित शर्मा है. Some are content with singles and doubles. राहुल द्रविड़ है, पुजारा है. सबकी अपनी अपनी अहमियत है, सब अपने अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है. As they say, one size does not fit all. There are different funds which suit different investors. Take help of an expert. There are 1,000+ mutual fund schemes. An expert will help you to choose the right funds, adjusting the asset allocation and matching your comfort and requirement.
इसी तरीके से मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में बोला, स्टॉक्स के बारे में ले लो, रियल एस्टेट के बारे में ले लो, गोल्ड के बारे में ले लो, ऑयल के बारे में ले लो, या कमोडिटीज के बारे में ले लो। आजकल सब चीज में लोग ट्रेड करने लग गए। बहुत बहुत बड़े इन्वेस्टर्स का एक ग्रिड तैयार हो गया है आजकल, ज़ेरोधा के मार्फत या जीरो ब्रोकरेज वाले इनके मार्फत। तो आपको एक्सपर्ट की हेल्प से ऐसे बहुत सारे एवेन्यूज मिल सकते हैं कि जहां एक अच्छा पैसा बने विद लेसर रिस्क। मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग में शॉर्ट में इसको कवर करूंगा। कंपाउंडिंग यानी आइंस्टाइन ने बोला था कंपाउंडिंग इज द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जो टाइप की वेल्थ कंपाउंडिंग में क्रिएट होती है, ये टाइप की वेल्थ ऑसम है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एन एसआईपी ऑफ 1 लाख पर मंथ विल एक्यूमुलेट 5 करोड़ अमाउंट इन 15 ईयर्स। ये एग्जांपल जो दिया है इसमें सिर्फ 12% पर एनम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम लोगों ने लिया हुआ है। 12% रेट ऑफ रिटर्न एक रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न वी कैन एक्सपेक्ट। गारंटीड तो कुछ नहीं होता, बट वी कैन एक्सपेक्ट दिस मच ऑफ रिटर्न। हिस्टोरिकल डाटा अगर देखें हम लोग तो इससे ज्यादा रिटर्न्स भी जनरेट हुआ है। 1 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए की एसेट जमा हुई। नेक्स्ट, आफ्टर 15 years, even if you withdraw 3 lakh rupees per month, your investment corpus is not only preserved but appreciated. ये actual data है. This is the actual data of initial amount of rupees 5 crore invested in balance advantage fund and withdrawn at the rate of 3 lakh rupees per month. यानी अगर हम लोगों ने सोचे बिजनेसमैन ने या प्रोफेशनल्स ने कि हम लोगों को पेंशन तो मिलना नहीं है और अगर हम लोगों को जल्दी रिटायर करना है, अगर समझ लो मेरी एज 40 है और मुझे 55वें साल में रिटायर करना है, आज मेरा खर्चा 1 लाख रुपए का है, मेरे को 3 लाख रुपए महीने का पेंशन मिले तो मेरे को चलेगा, तो वी कैन गो फॉर 3 लाख रुपए। हम लोग विड्रॉ करने के बावजूद भी हमारा अमाउंट प्रिंसिपल में से डिडक्ट नहीं हो रहा है, ऊपर से पैसा बढ़ ही रहा है। ये तो हो गई अभी की बातें। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज करंट सिनारियो। इट्स अ बूम और बबल। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल है, क्वेश्चन आंसर में डिटेल में लेंगे भी इसको हम लोग। With the stock market setting new highs almost daily basis, there is one question on everyone's mind: are we in the middle of yet another market bubble? पहले बूम के रीजन समझ लेते हैं कि why there is a boom। इतना बड़ा पैंडेमिक, 100 साल बाद आया हुआ पैंडेमिक, हमारे जनरेशन ने देखा हुआ ओनली इतना बड़ा पैंडेमिक। तो रीजंस फॉर द बूम आर $25,000 billion money printed after the pandemic hit the world। इतनी बड़ी लिक्विडिटी क्रिएट हुई, वो लिक्विडिटी किसी ना किसी एसेट क्लास में तो जानी थी, तो वो ऑलमोस्ट सभी टाइप के एसेट क्लास में गया। गोल्ड ने भी बूम किया, इक्विटी और म्यूचुअल फंड भी बूम किए। अगर अभी देखा जाए तो ऐसा बोला जा रहा है कि रियल एस्टेट भी बूम में आ रहा है। फैक्टर्स ड्राइविंग दिस सर्च: लार्ज यूएस फिस्कल सपोर्ट, यूएस, यूरोपियन, जापानीज सभी ने फिस्कल सपोर्ट बहुत जोरदार दिया। एक्टिवेशन ऑफ पेंट अप डिमांड एज कोविड-19 सेकंड वेव ब्रेक फेड्स। उतना जो डर पहले इसमें था वो डर अभी नहीं रहा कोविड का। परफॉर्मेंस गोइंग फॉरवर्ड शैल बी अ फंक्शन ऑफ सप्लाई कैचिंग अप विद ग्रोइंग डिमांड एंड प्रोग्रेस इन वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन जितना अच्छा होता है और डिमांड ग्रोथ बढ़ते जाएगा। Basically, I'll talk about India perspective. What are the positives for India? India perspective में forecast of a normal monsoon, export as an emerging growth opportunity for Indian corporate sector, weakened unorganized sector and imports restriction providing organized players an opportunity to grab the market share sign, deleveraged balance sheet of the corporate sector and well capitalized banking system। पहली बार ऐसा सिचुएशन है, बैंकिंग सिस्टम भी वेल कैपिटलाइज्ड है, कॉर्पोरेट सेक्टर की बैलेंस शीट्स डिलीवरेज्ड है और सब लोग कैपेक्स करने के लिए रेडी है। कोविड सिनेरियो अगर हम लोग देखें तो डेली एक्टिव केसेस है 10% ऑफ सेकंड वेव। पीक जो था सेकंड वेव का उससे 10% से भी कम इसमें आ गए हैं हम लोग। बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स दैट ड्रॉप्ड 55% इन फर्स्ट वेव वर्सेस 36% इन सेकंड वेव। हम लोग देख सकते हैं कि जुलाई में तो वो 91% पे आ गया था, मगर अगर मई की भी बात करें जिसमें पीक ऑफ कोविड था सेकंड वेव का, उसमें भी उसका ड्रॉप कम हुआ कंपेरेटिव टू पहले कोविड केस से। डर लोगों के मन से बहुत कुछ निकल गया या सिस्टम्स ठीक हो गई। ई वे बिल
and registration indicate uptick in economic activity, यानी e-way bills grow 18.8% month on month. Registrations rebound to April level. जीएसटी कलेक्शन अगर हम लोग देखें तो अप्रैल का जीएसटी कलेक्शन तो तूफान आया था, जून का जीएसटी कलेक्शन कम आया ड्यू टू लॉकडाउन. फ्यू इंकरेजिंग हेडलाइंस जो हम लोग पढ़ते हैं आजकल. इंडियाज एग्री एक्सपोर्ट्स अप 17.34% और एट $41.25 बिलियन इन 2021. डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है सरकार का वो 85%, zooms 85% in spite of economics disruption due to COVID-19. Power consumption grows nearly 10% to 115 billion BU in June. EPFO adds 12.76 lakhs new subscribers in April. Traffic on national highways back to April level shows CRISIL data. India's forex reserves jumps to $3.07 billion to fresh lifetime high of 608.08 billion. Current account surplus for the first time in 17 years. FY21 slips in deficit in Q4 21. India records highest ever merchandise exports in a quarter. What are the advantages to India? Developed countries continue to push ahead of their emerging peers over the pace of vaccination and return to normalization. जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, यहाँ पे या यूरोपियन कंट्रीज हो गई या जापानीज कंट्रीज हो गई, यहाँ वैक्सीनेशन बहुत अच्छा हो रहा है और ये नॉर्मलाइजेशन के करीब करीब आ गए. इजराइल को शायद मास्क वगैरह की रिक्वायरमेंट भी हटा दी. This may lead to strong export push for countries like India, especially in the prevalent China +1 push across several sectors. स्पेसिफिकली चाइना कुछ सेक्टर्स में तो एक्सपोर्ट बैन भी लगा रहा है उसके यहाँ पे प्राइसेस कंट्रोल करने के लिए. दैट इज ऑल्सो फेवरिंग इंडिया. ये तो हो गए पॉजिटिव्स फॉर द मार्केट. मगर इन्वेस्टर अवेयरनेस है तो वी शुड नो कि ये रैली को क्या क्या चीज ब्रेक भी लगा सकती है. फैक्टर्स दैट विल अप्लाई ब्रेक टू मार्केट रैली. फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यूएस फेड डिसाइड्स टू हाइक इंटरेस्ट रेट्स. जिस दिन यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट हाइक करने वाले हैं इतना भी बोल दिया, मार्केट में 5-10% का करेक्शन आ सकता है. इवन द करेक्शन कैन गो अप टू 20%. वी डोंट नो, दिस आर ऑल प्रेडिक्शंस. यूएस फेड ने क्वांटिटेटिव ईजिंग यानी जो बॉन्ड परचेसिंग उनका चल रहा है, अगर उन्होंने बोल दिया कि हम इसको कम करने वाले हैं या इसको बंद करने वाले हैं तो भी मार्केट में अच्छा लंबा करेक्शन आ सकता है. डॉलर क्रैश होता है, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी फॉर गुड करेक्शन. चौथी चीज इसमें एक और है कि इंडिया एज अ कंट्री रेटिंग, हम लोग लोएस्ट इन्वेस्टेबल ग्रेड रेटिंग पे है. अगर इससे एक नॉच भी हम लोग नीचे चले गए तो बाहर से एफआईआईस का जो पैसा आता है वो पैसा कम हो जाएगा. आना बंद भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. तो दैट इज ऑल्सो अ रिस्क. ये सारी रिस्क पोटली में है. वी डोंट नो कब होगा. इंटरेस्ट रेट हाइक करेगी, फेड क्वांटिटेटिव ईजिंग तो करने ही वाली है, एंड करने ही वाली है, मगर कब करेगी वी डोंट नो. 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, नो वन नोज. नॉट मी, नॉट एनीवन. देन व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? These events may happen within a year or after an year. Timing is not predictable. What should investor do? History suggests that investor lose more money staying away from the market than from being invested in the market. हिस्ट्री बताती है. अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, एक छोटा सा कॉमन स्टॉक, अपने हसीना स्टॉक का अगर एग्जांपल दूं, एक मेरा फेवरेट स्टॉक था सुवेन लाइफ साइंसेस करके. ये स्टॉक जनवरी फरवरी या उससे थोड़ा सा पहले दिसंबर 2019 या जनवरी 2020 के करीब में 180 रुपए के रेंज में था. ये डिमर्जर की इसमें स्टोरी थी. डिमर्जर के कारण ये स्टॉक थोड़ा सा बढ़ के 200-225 वगैरह हो गया. कुछ इन्वेस्टर ने जो 2-3 साल से इन्वेस्टर थे उन्होंने वहां पे निकाला. किसी ने इसको फरवरी में 300 में निकाला, किसी ने 330 में निकाला. मैं जानता हूं यहाँ सुनने वाले बहुत सारे इन्वेस्टर्स में से किसी ने हो सकता है किया होगा. किसी ने इसको 525 में निकाला. डिमर्जर के बाद ये 525 भी गया था. मगर आज का अगर स्टोरी मैं बताऊं आपको तो ये जो 525 गया था ये 500 तक नीचे आया. उस वक्त इसने बोनस डिक्लेयर किया और आज ये आफ्टर बोनस 500 रुपए है. इसका मतलब ये स्टॉक 160 से 1000 रुपए हो गया विद इन टाइम स्पैन ऑफ February 20 to February 21. एक साल में
इस स्टॉक ने 5 गुना पैसा कर दिया। आई एम नॉट गिविंग स्टॉक टिप्स बट एग्जाम्पल कि स्टे इन्वेस्टेड का क्या फायदा होता है, पूरी रैली एंजॉय करने का क्या फायदा होता है। डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग इज द की। हम लोग ये बोल सकते हैं कि SIPs आर द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट इन अ बियर मार्केट। Those who stopped SIPs in April to June quarter have a huge opportunity, lost a huge opportunity of gathering more units at lower NAV. SIPs के बारे में सबको पता है, थोड़ा सा मैं STP के बारे में बोलूंगा। STPs are the best instrument in volatile market. ऐसा बोला जाता है जब मार्केट का VIX हाई हो, हाई VIX के समय पे STP is the right tool. STP यानी सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। ये सिस्टमेटिक ट्रांसफर आप डेली, वीकली, बाय मंथली, मंथली, 6 मंथली किसी भी तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने कोविड पीरियड में डेट में पैसा लिया और डेट में पैसा लेने के बाद उसको एसटीपी के थ्रू इक्विटी में लाया, डेली एसटीपी के थ्रू इक्विटी में लाया। जिस टाइप के रिटर्न्स उसमें बने, those were great. एक अजून मागे पुढे। तो VIX जब हाई हो, STP इज द वेरी राइट टूल। इसमें आपकी सेफ्टी भी बनी रहती है, आपने अगर डेट में पैसा लिया तो डेट गिव्स यू सेफ्टी। एट द सेम टाइम आप धीरे धीरे इक्विटी में जा रहे हैं तो आपको जहां रिटर्न्स जनरेट हो रहे हैं वहां का एसेट क्लास भी मिलता है और सेफ्टी भी मिलती है डेट वाली। दिस डिकेड बिलोंग्स टू इंडिया। ये शायद मैं इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम का थोड़ा सा हटके जा रहा हूं, बट व्हाट माय पॉइंट्स आर, इंडिया इज गोइंग टू हैव पॉपुलेशन ऑफ 150 करोड़ बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड। हम लोग अभी 135 करोड़ है, ये एट द एंड ऑफ द डिकेड 150 करोड़ विल बी देयर। इतनी बड़ी पॉपुलेशन का खुद का अपना एक कंजम्पशन रहता है। Currently, more than 50% of the India's population is below the age of 25 and more than 65% below the age of 35. With majority of population earning, India will be the most lucrative market and this is going to be a major driver for growth. So these were the opportunities. But this is also a market valuation अगर देखा जाए, market 50,000, निफ्टी 16,000। दिस इज टाइम टू बी कॉशियस ऑल्सो। मैं शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहा हूँ, रियल एस्टेट तो अभी पिकअप कर रहा है, तो दिस इज टाइम टू बी कॉशियस। वी मे नॉट बी इन अ बबल बट देर आर ऑलवेज बबल्स इन सम कॉर्नर्स ऑफ द मार्केट। कहीं ना कहीं बबल्स हमेशा बने रहते हैं। कुछ स्टॉक्स का वैल्यूएशन रॉकेट हाई हो गया है। You can take the names of Adani और कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिनका बहुत भयंकर वैल्यूएशन हो गया है। तो बबल्स मार्केट में कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉर्नर में रहते हैं। बट इट्स ट्रू दैट सेंटिमेंट्स एंड वैल्यूएशंस आर हाई व्हाइल फंडामेंटल्स आर स्टिल रिकवरिंग। यानी फंडामेंटल्स अभी तक मैच नहीं की है। निफ्टी के 2023 के ईपीएस को मैच करने वाला वैल्यूएशन 2021 में ही मिल गया है। सो either earnings should come up or Nifty should come down. कहीं ना कहीं तो मैच करना पड़ेगा। We might have factored in possible improvements in the economic prospects to some extent, but are we ignoring downside risk? हम लोग downside risk कहीं छोड़ तो नहीं रहे। I think we are now on the most important slide of our presentation. This is what should an investor do? Recognize, prioritize and mobilize. थोड़ा सा समय दूंगा मैं इस स्लाइड्स के ऊपर। These are very important slides. वेल्थ क्रिएशन के लिए ये काफी जरूरी है। What we should recognize what you want from your investments and what kind of risk are you willing to take for that. जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किए, या हर कोई यहाँ का जानता है, आते वक्त हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर करके आते हैं, धीरे से ट्रेडर, फिर धीरे से F&O,
अलग इसमें चले जाते हैं, या इवन इफ वी आर इन इन्वेस्टमेंट कि हम लोग 5 साल की इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं, मगर धीरे से जोमेटो का आईपीओ आ जाता है, हम फुल फ्लेज उसमें अप्लाई करते हैं, या जोमेटो का आईपीओ हम लोगों को नहीं लगा, जोमेटो का स्टॉक लिस्ट होता है, 60,000 करोड़ के वैल्यूएशन को जस्टिफाई लोग नहीं कर पा रहे थे, फाइनेंशियल एनालिस्ट जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, आज उसको मार्केट ने 1 लाख करोड़ का वैल्यूएशन दे दिया। अगर आपका स्टडी बहुत अच्छा है और आप उस सेक्टर को समझते हो तो कोई हरकत नहीं है, बट वी शुड एनालाइज कि क्या हम रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट करने आए हैं, यानी हम लोगों को सुपरस्टार्स की तरफ जाना है, या नॉर्मल स्टार्स जिसमें हम लोगों को 12% रिटर्न मिल सकता है ऐसे के साथ रहना है। बहुत सी बार हम लोग ये 12% का साथ छोड़ के 50% और 100% के पीछे दौड़ते हैं, एंड वहां पे एक अच्छा खासा डेंट अपने पोर्टफोलियो में लेके आते हैं। Average long-term returns are a result of higher than average returns in certain periods, followed by lower than average returns. कुछ साल में हायर देन एवरेज रिटर्न्स, जैसे पिछले साल हुआ, इसमें बहुत ज्यादा रिटर्न्स निकले। स्मॉल कैप इंडेक्स अगर हम लोग देखें तो इट्स 125% हायर, तो इतने ज्यादा रिटर्न्स निकलने के कारण एवरेज रिटर्न्स बढ़ गए। मगर ऐसे साल कम रहते हैं, और जहां आपका एवरेज रिटर्न कम रहे ऐसे साल ज्यादा रहते हैं। द टाइम स्पेंड बाय मार्केट्स बिलो देयर ऑल टाइम हाइज कैन बी लॉन्ग एंड साइकोलॉजिकली टैक्सिंग। जिस समय पे रिटर्न्स निकलते हैं, ऐसे समय को छोड़ के, यानी जहां पे रिटर्न्स कम निकलते हैं, जो इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन है उससे कम रिटर्न, जैसे हम लोग अगर 12% से 15% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अगर 8% से 9% के रिटर्न्स निकल रहे हैं, ऐसा ज्यादा पीरियड हो सकता है, दैट इज साइकोलॉजिकली टैक्सिंग। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना बहुत आसान है। पिछले 1.5 साल में तो बहुत सारे लोगों ने यही बोलना चालू कर दिया है, आपके आजू बाजू के बहुत सारे लोग ये चीज बोलते हैं, बट इट्स वेरी टफ मेंटल साइकोलॉजिकल गेम स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना। F&O अगर आप करने जाओ तो इट्स अ ब्रेन ट्रेनर। F&O के करते वक्त आपकी रात की नींद खराब हो जाती है, आप उसी बारे में सोचते हो, आपका नॉर्मल बिजनेस क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, आप सब ये चीज भूल जाते हो, और दिमाग में सिर्फ वो F&O वाली चीज घूमती है, इसका एक्सपायरी कब है, कितने पे लेना है, कितने पे बेचना है, अभी निकलूं कि बाद में निकलूं, ऊपर गया नीचे गया, इट्स अ ब्रेन ट्रेनर, आप एंजॉय भी नहीं कर पाते। सो साइकोलॉजिकल गेम है ये, इसमें आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो पीस ऑफ माइंड के लिए असेट अलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर असेट्स में रियल एस्टेट, गोल्ड, इक्विटी, डेट, सब में इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए। ते तो ऑलरेडी डिपार्टमेंट कडे आहे ना, त्यात कसं करता 19-20-21 हे राहू दे। इमेजिन इक्विटी रिटर्न्स स्टैग्नेट और मार्केट करेक्ट फ्रॉम हियर, पैसे दिलेलीच नाही आता पण will you be able to hold on to your portfolios? 26 इयर्स मागितले 21 देऊ बनवून सगळं काय। What will you regret more? यानी अगर नॉर्मल नीचे की जो 2 सिचुएशंस है, इसमें से क्या सिचुएशन में आप ज्यादा पछताओगे? फर्स्ट, नॉट ट्रिमिंग एक्सपोजर एंड मार्केट क्रैशिंग, आपने माल नहीं बेचा और मार्केट नीचे आ गया, आप ज्यादा पछताओगे? या अगर रिड्यूसिंग रिस्क इन योर पोर्टफोलियो एज मार्केट्स कंटिन्यू टू रैली, अगर आपने इक्विटी में से निकाल के पैसा हाइब्रिड में डाल दिया, या आपने इक्विटी में से निकाल के एफडी में पैसा डाल दिया थोड़ा बहुत, और मार्केट रैली करता रहा, आप किस सिचुएशन में ज्यादा पछताओगे, ये आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो? राकेश झुनझुनवाला को हाई रिस्क गेम अच्छा लगता है क्योंकि वो उस टाइप का इन्वेस्टर है, मगर क्या आप राकेश झुनझुनवाला हो? दैट इज अ क्वेश्चन वन नीड टू आस्क टू योरसेल्फ। We need to prioritize what? To generate long-term returns, you have to survive first and avoid minefields along the way. This is the risk control. बहुत सारे ऐसे माइंस आपके आजू बाजू में बिछे रहेंगे, इसको अवॉइड करते हुए आपको सरवाइव होना है, दैट ऑल्सो यू शुड माइंड। You can't always be fully invested in risk assets. You can reduce exposure when the risk manifests. But this carries the danger of acting at the worst possible moment. गलत मोमेंट पे आप बाहर निकल रहे हो, ये भी नहीं होना चाहिए। You can have a systematic approach to control your risk. जैसे आप STP से एंटर कर सकते हो मार्केट में, वैसे ही आप SWP से सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान से बाहर भी निकल सकते हो। एक साथ निकलना जरूर नहीं है, आप रोज की डेली SWP लगा के भी निकल सकते हो, डेली वीकली मंथली SWP लगा के भी निकल सकते हो।
Mobilize. First, know what you own. You can generate alpha by getting your asset allocation right. अल्फा जनरेट करना माइंड यू बहुत डिफिकल्ट टास्क है. ये आप जनरेट कर सकते हो प्रॉपर असेट अलोकेशन से. इजी गोइंग नहीं होता. बहुत सी बार ये एग्जांपल दिया गया, मैं फिर से एक बार देता हूं कि एक बार एक वर्ल्ड के सबसे अच्छे फंड मैनेजर ने, बहुत बड़ा ये था वो, उसने एक टास्क दिया था उनके फंड मैनेजर्स को. वो एक स्कूल में लेके गया बच्चों को, वो फंड मैनेजर्स को, और उन्होंने वहां पे बताया कि ये स्कूल के बच्चे और आप फंड मैनेजर्स, आप दोनों लोग अपना अपना पोर्टफोलियो चूज करो. 1 साल बाद हम लोग देखेंगे कि किसके पोर्टफोलियो ने ज्यादा रिटर्न जनरेट किया. फंड मैनेजर्स पहले तो बहुत नाराज हुए, मगर उसके बावजूद उन्होंने उसको ऑप्ट किया. उन्होंने बीट करना है, किसी को अल्फा जनरेट करना है, इसलिए उन्होंने उसकी जितना भी ज्ञान था उसके हिसाब से हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया. बच्चों ने, उनको सिर्फ जो पता था उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया. वो कैडबरी खाते थे तो कैडबरी में इन्वेस्ट किया. वो जो चीज करते हैं, जो ब्रांड पहनते हैं कपड़ों का, वो ब्रांड में उन्होंने इन्वेस्ट किया. जो मॉल्स में जाते हैं या जो एयरप्लेन से फ्लाई करते हैं वहां पे इन्वेस्ट किया. 1 साल बाद ये देखा गया कि बच्चों ने फंड मैनेजर्स से ज्यादा अच्छा रिटर्न्स दिए. सो जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा रिस्क लेके ही अच्छे रिटर्न्स जनरेट होते हैं. असेट अलोकेशन करेक्ट रहेगा तब अच्छे रिटर्न्स जनरेट होते हैं. Diversify across asset classes, across themes, across factors, even across countries. आजकल बहुत सारे एवेन्यूज अवेलेबल है. हम लोग यूएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम लोग यूरोप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम लोग कोरिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम लोग जापान में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम लोग रेस्ट ऑफ एशिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम लोग ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं. इसके अलावा अलग अलग फैक्टर्स पे, अलग अलग थीम्स पे, अलग अलग असेट क्लासेस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं. एक्टिवली रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो. इवन रियल एस्टेट में भी हमारे पास रिट्स इंस्ट्रूमेंट है, जो रिट्स के थ्रू हम लोग रियल एस्टेट का भी फंड है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. इवन एक ऑप्शन तो ऐसा भी है कि हम लोग इंटरनेशनल रिट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कि जैसे हांगकांग में, सिंगापुर में अच्छे रेंटल्स मिलते हैं, तो कुछ ऐसे रिट्स में इन्वेस्ट करें कि जाके जिससे हम लोगों को वहां का रेंटल यील्ड मिल जाए. यानी डॉलर एप्रिसिएशन के अलावा रेंटल यील्ड, इसके कारण आपका डेट से थोड़े से ज्यादा रिटर्न्स निकल सकते हैं वहां से. Actively rebalance your portfolio or pick a product that does it for you. आपको खुद को रिबैलेंस करना पड़ेगा आपका पोर्टफोलियो, या आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट चूज करना पड़ेगा जो आपको सूट करता है. There are some do's. Continue to hold equities at lower than peak allocation. Shift exposure from high growth, high PE names to the value buckets. ये मैं मेरा खुद का जो मानना है वो बता रहा हूँ. एक्सपर्ट्स का ओपिनियन डिफर कर सकता है. Have exposure to multiple markets, currencies, multiple currencies. Have gold in the portfolio as a hedge, at least 5%, because gold acts as a hedge to your riskier assets. There are some don'ts, or there are many don'ts. मैं थोड़े ही लिखे. Raises the temptation to reach for yields by taking duration, credit, liquidity और drawdown risk. इस पे बहुत सारे CAs या बहुत सारे इन्वेस्टर्स खुद जानते हैं. जो एक एपिसोड हुआ लास्ट अप्रैल में, किसी एक फंड ने अपने 6 स्कीम्स अचानक से वाइंड अप कर दिए. ह्यूज पैसा जो डेट में पड़ा हुआ था, ह्यूज पैसा लोगों का अटक गया. आज वो पैसा धीरे धीरे निकल रहा है. कितने, कौन से स्कीम में से कितना निकलेगा वी डोंट नो, मगर वो पैसे का रिटर्न्स की बात अलग है. मगर एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी जिस वक्त मार्केट में कोविड आया, जिस वक्त मार्केट 40% डिस्काउंट में मिल रहा था और लोग इजीली डेट में से इक्विटी में शिफ्ट हो सकते थे, अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते थे, वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई. सो raises the temptation to reach for yields by taking duration, credit, liquidity and drawdown risk. क्या था, सिर्फ 1.5% या 1.5% का रिटर्न ज्यादा था. उसके लालच में पूरा का पूरा पैसा, हाँ ये जरूरी नहीं, हमको नहीं पता कि कहाँ कितना एग्जैक्ट रिस्क है, मगर पूरा पैसा एक ही फंड में डालना या एक ही टाइप की स्कीम में पूरा पैसा डालना, दैट इज अ ग्रेट रिस्क. डोंट गो चेजिंग यील्ड्स.
refrain from taking drastic steps of moving completely in or out of any asset class. एक asset class से जैसे डेट से पूरा बाहर निकल जाओ, मार्केट अच्छा कर रहा है तो गलत, पूरा का पूरा इक्विटी में से बाहर निकल जाओ वो भी गलत, रियल एस्टेट में पूरा का पूरा चले जाओ, एनी asset class में इन और आउट कंप्लीट रिस्कियर है. डोंट बी लेजी विथ asset allocation. जब कभी आपके समझ में आए कि मेरा asset allocation गलत है, डोंट बी लेजी, करेक्ट इट. To summarize, I'll say be cautious, don't take undue risk, invest in a disciplined way and be invested. एक चीज मैंने इसमें टोटली अलग कर दी, जैसे बहुत सारे इसमें आपने सुना होगा कि पॉन्जी स्कीम्स, अन्ना वाली स्कीम्स, चिट वाली स्कीम्स, जहां आपको कुछ नहीं पता वहां पे आपने इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. और मुझे ऐसा लगता है जो आज इन्वेस्टर क्लास है, जो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है, इन लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया. सो अपना समराइज तो यही है कि बी कॉशियस, अनड्यू रिस्क मत लो, डिसिप्लिन वे से इन्वेस्ट करो, बट बी इन्वेस्टेड. एंड लास्टली द कंक्लूजन, इट्स टाइम टू फॉलो द नॉज रूल. प्रेडिक्टिंग रेन डजंट काउंट, बिल्डिंग एन आर्क डज. बारिश का प्रेडिक्शन काम नहीं करता, आपको आपकी शिप बनानी पड़ेगी. योर पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर टुडे शुड बी योर सेफ्टी नेट इन केस ऑफ अ क्राइसिस. जैसा पहले भी मैंने बोला कि अगर क्रैश आता है तो आपने जंप मारना चाहिए, भैया डिस्काउंट सेल लगाए मार्केट में, तारे जमीन पर है, मुझे इन्वेस्ट करने का मौका है. और अगर आपका मैंने मार्केट ऊपर ही जाता है तो आपके पास ये है कि मेरे पास माल पड़ा हुआ है, मैं बेच के प्रॉफिट बुक कर सकता हूं. तो स्ट्रक्चर योर पोर्टफोलियो इन सच अ वे दैट there are safety nets for you. This is my mobile number and my email ID. You can get in touch with me if any other queries are there. Now I'll hand over to Chairman sir for question and answer session. जो भी questions होंगे, I'll be happy to answer them. Yes, I feel the floor is open. Floor is open for questions if any. Is my voice audible? Hello. Yeah. Yes, sir. I want to ask. This is suppose I want to invest in real estate. I am having my own property, my own commercial place, and still I want to invest right now. And say, for example, in Nagpur, say Mihan area, it's a developing area. So shall I go for that area, or how to think about that right now in this period of crisis? Ma'am, I'm not a real estate expert, but मुझे ऐसा लगता है कि आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले काफी सारी चीजें चेक करनी पड़ती है, जैसे लीगल डॉक्यूमेंट्स, ताबा, उसकी फ्यूचर ये क्या है, फ्यूचर गेन्स हम लोगों को क्या क्या हो सकते हैं. अगर आपको वो सब चीज सही लगती है, जैसे मिहान अगर आप बोल रहे हैं, तो मिहान में अभी कुछ कंपनीज आ गई है टॉप में, जैसे इन्फोसिस हो गया, HCL हो गया, टाल हो गया, एम्स आ गया है, NCI काम कर रहा है. मगर जितना चाहिए था उतना नहीं आया है. यानी बहुत बड़ा एरिया है, बहुत सारा एरिया वैकेंट भी है, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 5 years तो लगेंगे उसको डेवलप होने के लिए. सो इट्स अ कॉन्शियस कॉल टू बी टेकन विथ एन एडवाइजर ऑफ रियल एस्टेट. यानी मैंने मेरा व्यू बताया, बट यू शुड कंसल्ट अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट. Okay, thank you, sir. Thank you so much. Thank you, ma'am. Somebody had raised his hand. Mangesh ji, you can ask a question from your. आहे का प्रश्न आला? Unmute yourself. कुठे हा? Sir, thank you very much for a very nice and elaborate seminar.
In fact, I got very too many things got clear during this seminar. Only one thing, during this session, I understood that there are multiple ways of multiple instruments in which we can invest, like equity is there, then gold is there, and rather real estate is there. So इसमें हम लोग उसका बेंचमार्किंग किस तरह से करें कि लाइक हाउ टू कितना पोर्शन वहां जाना है और किस एसेट का किस तरह से बेंचमार्किंग करें कि भाई लाइक इसमें कब एंट्री कब एग्जिट करे उसके बारे में, मतलब इट्स क्वेश्चन वेरी ब्रॉड, बट फॉर एग्जांपल अगर मैं इक्विटी लेता हूं तो इक्विटी को हम लोग बेंचमार्किंग कैसे करें कि हम लोग किस इक्विटी से कब निकलना है और कब रुकना है उसमें? वेरी वेरी टफ क्वेश्चन। इक्विटी में कब एंटर करना और कब एग्जिट करना, एंटर करना तो फिर भी आसान है, एग्जिट करना इज अ वेरी टफ क्वेश्चन। आपको बहुत कुछ फॉलो करना पड़ता है। जैसे इक्विटी का हो गया, इक्विटी में आजकल काफी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑन अ क्लिक। कंपनीज के कॉन कॉल्स होते हैं, कॉन कॉल्स होते हैं, वो कॉन कॉल्स में आपको बहुत सारी जानकारी वो कंपनी की मिल जाती है, बट इट्स अवर कॉन्शियस कॉल कि किस लेवल पे हम लोगों को एग्जिट करना है, क्योंकि पी लेवल अलग अलग रहेंगे। पी लेवल यानी प्राइस टू अर्निंग पर शेयर या प्राइस टू बुक वैल्यू पर शेयर, ये अलग अलग लेवल रह सकते हैं। और दैट एवरी इन्वेस्टर्स कॉल कि किस लेवल पे हम लोगों को जाना है। अगर आप फाइनेंशियली एक्सपर्ट हो तो दैट इज ओके, अदरवाइज एल्स किसी एक्सपर्ट का हेल्प लेना ज्यादा अच्छा है इस सब चीजों में। I got your point. मेरा बेसिकली मतलब जानना ये चाहता था कि अगर हमारे पास मल्टीपल एसेट्स है, जैसा गोल्ड है, रियल एस्टेट है और इक्विटी है, तो नॉर्मली हमें मालूम है कि इक्विटी का जनरली रेट ऑफ मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज क्विकर एंड हायर। रियल एस्टेट का कभी कभी क्या होता है, एक पर्टिकुलर लाइक वी हैव टू होल्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड एंड ऑल। तो इस हिसाब से जो बेंचमार्किंग मतलब अच्छा इसका कोई ये है क्या सोर्स है जहां से हम लोग पता कर सके कि अभी फॉर द नेक्स्ट 10 years इक्विटी मार्केट में ग्रो एट दिस रेट, गोल्ड में ग्रो एट दिस रेट और दिस रियल एस्टेट में ग्रो एट दिस रेट, ऐसा कहीं कोई मतलब सोर्स है जहां से हम लोग पता कर सकें सो दैट वी कैन टेक अ पोजीशन? बिकॉज अगर मेरे पास 1 साल का होरिजन होगा तो आई मे गो फॉर इक्विटी, इफ माय होरिजन इज 5 years आई मे गो फॉर गोल्ड, इफ माय होरिजन इज 15 years आई मे गो फॉर real estate from that point of view. Excellent question. I will say that he's asking sir really practical question. नहीं, बात सही है। अगर मतलब ऐसा कोई लिटरेचर है जहां से मैं रेफर कर सकूं कि जहां पर थोड़ा प्रेडिक्शन मिले? लिटरेचर्स अवेलेबल है, काफी सारे जगह पे अलग अलग एक्सपर्ट की अलग अलग राय है। इसमें बहुत सारे अलग अलग एक्सपर्ट हैं। ये जो एक्सपर्ट्स हैं ना, इनका खुद का थिंकिंग भी बहुत अलग अलग है। जैसे हम लोग वॉरेन बफे का नाम सुनते हैं, वॉरेन बफे इज अ वैल्यू इन्वेस्टर। तो जो इसमें इन्हें 2 स्टाइल में बता रहा हूँ स्पेसिफिकली, ग्रोथ एंड वैल्यू। तो जो ग्रोथ वाले इन्वेस्टर्स हैं वो वैल्यू वाले को कुछ नहीं मानते, और जो वैल्यू वाले इन्वेस्टर्स हैं वो ग्रोथ वाले को कुछ नहीं मानते। वॉरेन बफे बोलता है सस्ते में खरीदो महंगे में बेचो, ग्रोथ वाले बोलते हैं कि महंगा वाला और महंगा होते जाएगा। तो एक्सपर्ट की राय अलग अलग है, वो अलग अलग वैसे इसका बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। एक कैपिटल मार्केट करके मैगजीन आता है, नोन टू ऑल, एक अच्छा मैगजीन है वो। इनका अलग अलग सब्सक्रिप्शन भी है, गोल्ड सब्सक्रिप्शन भी है उनका, जिसमें वो कुछ टिप्स भी शेयर करते हैं। तो वो लोगों के इसमें भी अच्छा खासा डेटा एनालिसिस होता है, वो लोग खुद बताते भी हैं। गोल्ड के लिए आपको एक्सी करके एक वेबसाइट है, इवन ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स करके एक वेबसाइट है, इसके ऊपर सारे चीज का प्रेडिक्शन मिलेगा आपको। उनका खुद का राय, उसको आप 100% नहीं मान सकते। जैसे हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं कि 50% सच होगा, 50% झूठ होगा, या मीडिया देखते हैं तो शायद हम लोगों को किसी मीडिया को 90% डिस्काउंट कराना पड़ेगा, किसी को 50% डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको लगाना है। ऐसे मीडियाज अवेलेबल है या ऐसे मैगजीन्स अवेलेबल है जहां पे ये सब चीज मिलेगी। शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो ये हो सकता है, इक्विटी के बारे में ये बोला जाता है 100 माइनस योर एज, जितना परसेंटेज है, यानी आप अगर 45 के हो तो 100 माइनस 45, 55% यू कैन गो विथ इक्विटी। गोल्ड के बारे में ये बोला जाता है कि गोल्ड इज अ नेचुरल हेज, कम से कम 5% आपका गोल्ड में होना चाहिए। रियल एस्टेट आपका शहर टू शहर डिफर करता है, इसलिए सर्टेन परसेंटेज फिक्स नहीं है रियल एस्टेट के। इसमें आप अगर मुंबई में रहते हो तो वहाँ रियल एस्टेट की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, आप अगर गाँव में रहते हो तो वहाँ पे रियल एस्टेट की कॉस्ट काफी कम है। तो आपका खुद का घर
खुद का ऑफिस, ये टाइप की चीज जितने में आपकी आती होगी वो तो आपको खर्च करना पड़ेगा वहां पे। और हॉरिजॉन का अगर हो गया तो लंबे पीरियड के लिए अगर आप रह सकते हो तो इक्विटीज आर द बेस्ट एसेट क्लास। गोल्ड हेजिंग के लिए हम लोगों ने बोला हुआ है, और रियल एस्टेट जितना जरूरी है उतना लेना चाहिए, दैट इज आवर व्यू। Thank you very much. Very concise and what you can say, elaborated answer I got. Thank you very much. It was a very good seminar. Thank you. Thank you. We have got two questions. Hello, I am Yash. Thank you for such a wonderful and very informative session for that. I have some question to Amit sir. Can you sir tell me that can you invest the cryptocurrency, or what are you think about that? It is good to invest some amount of money and add in our portfolio. And second question is that what time I can stop and start the SIP? And third question is that can you? It is similar question about the Mangesh told already. Can you please explain the percentage wise to asset investment portfolio? It is what percentage invest in gold, SIP, mutual fund, like that. These are the questions. Yeah, your first question regarding crypto, I'm not crypto expert, बट क्रिप्टो के बारे में जो राय, यानी जैसे मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के टच में रहता हूँ या जिनसे मेरी बात होते रहती है, उनका ऐसा कहना है कि क्रिप्टो अगर गोल्ड बैक्ड हो जाए तो विल बी इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो, जो आज के तारीख में नहीं है। क्रिप्टोज आर नॉट बैक्ड बाय गोल्ड, सो क्रिप्टो इज अ वेरी रिस्की एसेट क्लास। आपको अगर उसके बारे में ज्यादा जानकारी है सो यू शुड गो फॉर, जैसे स्लाइड में भी मैंने बोला कि रिटर्न्स आर कमिंग विथ रिस्क। जितने ज्यादा रिटर्न्स उतनी रिस्क भी बहुत ज्यादा है। इफ यू आर रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर यू कैन गो, अगर आप रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर नहीं है तो यू शुड नॉट गो। सेकंड क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू एसआईपी स्टार्ट एंड स्टॉप। यस यू कैन डू दैट। एसआईपीज में पॉज का भी ऑप्शन है, आप जितनी बार आपने आपको पॉज करना है पॉज कर सकते हो, स्टार्ट करना है स्टार्ट कर सकते हो। स्मार्ट एसआईपीज जैसे मैंने बताया वो भी ऑप्शन है कि अगर मार्केट नीचे है तो आपकी एसआईपी अमाउंट ज्यादा रहेगी, मार्केट ऊपर है तो आपकी एसआईपी अमाउंट कम रहेगी, दैट इज ऑल्सो देयर। एसटीपीज में भी ये ऑप्शन अवेलेबल है कि रोज का मेरा इतना पैसा जाना चाहिए, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो मेरा ज्यादा पैसा जाए, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मेरा कम पैसा जाए। तो दैट इज व्हाट दैट वाज सेकंड क्वेश्चन। No. My question is slightly different. How can we identify what time it is correct to start or stop? नहीं, एसआईपी करना ही क्यों फिर? अगर स्टार्ट और स्टॉप करना है हम लोगों को तो वी शुड नॉट गो फॉर एसआईपी, वो तो फिर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, आपका लमसम इन्वेस्टमेंट हो गया। एसआईपी उसी के लिए है कि ये एवरेज आउट करते बोला था ना कि इफ इट इज इंक्रीजिंग द निफ्टी एंड अभी सेंसेक्स भी बढ़ रहा है, सो दैट टाइम अभी बबल्स वगैरह हो रहे हैं मार्केट में। नहीं, उसके लिए मैंने ये स्मार्ट एसआईपी का ये बोला था मैंने, उसके लिए आपको डिफाइन करना पड़ता है। जैसे आज अगर सेंसेक्स का लेवल 50,000 है एंड इफ यू कंसिडर कि ये जो पी है, आज का जो पी लेवल है, ये पी लेवल आपको सूट करता है या पी लेवल आपको ज्यादा लगता है, तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि पी लेवल कम हो गया तो मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए, अगर पी लेवल ज्यादा हो गया तो आपका इन्वेस्टमेंट, यानी हर म्यूचुअल फंड एएमसी जो है उन्होंने अपना अपना स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। उन्होंने अपने स्ट्रक्चर में ये इनबिल्ट डाला हुआ है कि ये पी पे ज्यादा एसआईपी जाएगी, ये पी पे कम एसआईपी जाएगी। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, वो एसआईपी जो एएमसीज है वो आपको डिफाइन करके दे देंगे। आपको चूज करना है आपको कौन सा सूट करता है। आपके हिसाब से 25,000 का मार्केट सस्ता है कि 35,000 का सस्ता है या 45,000 का सस्ता है, उसके हिसाब से आपको एएमसी लेना है और उसके हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है। यस, ओके, थैंक यू। And third question is the percentage wise differentiate. जैसे बताया एज माइनस योर 100 माइनस योर एज, आपने इक्विटी में जाना चाहिए। गोल्ड कम से कम 5% रहना चाहिए। रियल एस्टेट आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपने करना चाहिए। एटलीस्ट 20% आपका डेट में रहना चाहिए, एटलीस्ट, क्योंकि जब मार्केट नीचे आता है 40% जैसे कोरोना ने आपको समय दिया, उस वक्त आप इन्वेस्ट कर सको, वो भी फायदा होता है, प्लस पीस ऑफ माइंड भी रहता है, आप कंफर्टेबल रहते हो, और अगर आप कंफर्टेबल रहे तो इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छा है। क्वेश्चन मैं ऑनलाइन देख रहा हूं यहाँ पे, कैन वी से दैट फार्मा रैली इज ओवर एंड इट रैली बिगन एंड आईटी रैली बिगन सेक्टर स्पेसिफिक? ओके,
नॉट दैट एक्सपर्ट, बट आई कैन से फार्मा ये चलते रहेगा। फार्मा 15 से लेके 2015 से लेके 2020 तक फार्मा नहीं चले थे, मगर उन्होंने कोरोना के पीरियड में अच्छी रैली दी। ये रैली में उन्होंने सिर्फ 5 साल में जो नहीं चले उतना ही कवर किया। अब ये क्यों नहीं चले थे, 15 से 20 के बीच में क्यों नहीं चले थे? तो इसका रीजन था कि जेनरिक वाले कंपनीज बहुत ज्यादा आ गई थी। जो एक्सपोर्ट करते थे यूएस को, वहां का मार्जिन एकदम से कम हो गया था, यानी 2% मार्जिन, वेफर थिन मार्जिन पे आ गई थी ये सब कंपनीज। सो ये इनको मार्केट ने वैल्यूएशन नहीं दिया। मगर अब कंसोलिडेशंस काफी ज्यादा हो गया, जेनरिक में प्रॉफिट मार्जिन कम होने के कारण कुछ कंपनीज बंद हो गई, कुछ कंसोलिडेट हो गई, तो अब बड़े प्लेयर्स ज्यादा बचे हुए हैं। उसके कारण 15 से 20 वाली सिचुएशन अब नहीं आएगी ऐसा लगता है। फार्मा इज अ गुड, फार्मा सेक्टर इज गुड, एंड फार्मा सेक्टर का अपना कुछ एक वेटेज है निफ्टी में। हम लोगों को लगता है कि उस वेटेज से थोड़ा सा ज्यादा वेटेज अपने फार्मा का अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। आईटी सेक्टर ने भी बहुत अच्छा रैली दिया है। आईटी सेक्टर के इसमें थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर आ सकते हैं, क्योंकि उसका मेजर खर्चा जो होता है दैट इज सैलरी, और सैलरी खर्चे बढ़ने के बहुत ज्यादा ये है, सैलरी की डिमांड्स या सैलरी का ग्रोथ एक्सपेक्टेशन काफी हाई है, तो मार्जिन्स पे प्रेशर रह सकता है। ऊपर से वर्क फ्रॉम होम वाले कल्चर को बाहर के लोगों ने भी अडॉप्ट कर लिया, उसके कारण उनकी जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स है वो भी कम दाम में आ सकते हैं। सो देयर कैन बी सम प्रेशर ऑन आईटी, बट मिड कैप आईटी जो चल रहे हैं वो चल सकते हैं, अच्छे चल सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? There were some questions in the chat box. I feel we have covered those questions. Except that one question of Gitesh, market at present is presently at relatively higher level. How one should approach the market here if one wants to still infuse the funds in equity? I think volatility भी high है और market भी high level पे है। अगर इक्विटी में जाना है तो आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग, ये जो सोचना है खुद का, वो कम से कम 5 से 7 साल रहना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि मार्केट अच्छे खासे वैल्यूएशंस पे है। तो ऐसे इसमें भी इक्विटी में एंटर करने के लिए वन शुड गो फॉर फर्स्ट डेट, और डेट से एसटीपी लगा के वी कैन गो फॉर इक्विटी। वोलेटिलिटी के कारण भी और मार्केट वैल्यूएशंस के कारण भी, जिसमें आप सेफ भी चलते हो, आपका डेली वीकली मंथली एसटीपी के थ्रू आप जा सकते हो, तो डेट का पोर्शन भी बना रहता है। मार्केट क्रैश होता है तो आप उसको बढ़ा भी सकते हो, और इक्विटी में भी धीरे धीरे आप जा सकते हो। Sir, any your update about silver and gold? Both are good. Both are good. ये दोनों की प्राइसेस तब बढ़ती है जब मार्केट में लिक्विडिटी हो और इंटरेस्ट रेट्स कम हो, तो दोनों के लिए ये बहुत अच्छी सिचुएशन है अभी। वी एक्सपेक्ट गोल्ड शुड रैली, और एक 10% का इंपोर्ट ड्यूटी का जो रिस्क है, 10% इंपोर्ट ड्यूटी अगर कट हो गई तो वो 10% एक ही दिन में नीचे आ जाएगा। अदरवाइज एल्स गोल्ड शुड डू वेल। That has been really interesting. Sir, there are so many more things to learn from you, but I feel we will keep another session for understanding all those things also with you. This has been a really interesting session. I request Devashish Mahadule to please propose a formal vote of thanks. Hello, sir. Am I audible? Yeah. Hello, Mr. I'm Devashish Mahadule, and on behalf of Nagpur branch of Vikasa of ICI and Nagpur branch of WIC of ICI, I thank you for such an informative session, and I'm sure it will help a lot of amateur as well as seasoned investors attending this session. I'd like to thank all the attendees for their patient listening and eager involvement in this session. And sir, I'm really hopeful that you would continue to enlighten us on this stock jungle in the near future as well. Thank you, everyone. And I believe this is the end of the session, and the session will conclude now. Thank you from my side also for giving me this opportunity. Thank you. I feel, friends, the best part of this session was that it started right at 4:30 and this has also ended at 6 PM. This also speaks about the speaker's mettle when he says कि सही समय पर सब कुछ करो, सही समय पर एंट्री करो और सही समय पर एग्जिट करो. So we are also exiting at the right time with thanks to the speaker. Thank you one, thank you all.
Thank you.